Hello everybody. So we are moving to the next lecture, lecture number 24, uh, and we were discussing the design of flexural member. In that we have covered the two lectures. In first lecture we have covered the theory. After that, in the 23rd lecture, means the last lecture, हमने पढ़ा था low shear case design of flexural member. Now moving to the next question, numerical, which is based on the high shear case, so that you will get clarity for this also. Okay, so this design is given on the page number 70 of IS 800 2007. Okay, I'll take pen. Okay, so this is the we are going to see the design of high shear case. What is the high shear? हमने बोला था कि जो डिजाइन शेयर है उसको हमने नाम दिया वीडी, उसका हमने 60% लिया, मतलब 0.6 टाइम्स ऑफ दिस, दैट shear or shear force, if it is this shear force is greater than 0.6 times of VD. ठीक है, मतलब जो है, जो गिवन shear force है उसकी वैल्यू 60 टाइम्स ऑफ VD या 0.6 टाइम्स ऑफ VD से अगर एक्सीड कर जाती है, देन आप कहेंगे उसको हाई शेयर केस, राइट। और प्रोसीजर थ्योरेटिकल ओवरव्यू हमने ले लिया था, बट इसमें न्यूमेरिकल में देखते हैं तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, डिजाइन द मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द दिस सेक्शन ISLB 350 और लेटरली सपोर्टेड बीम, वो बीम इज लेटरली सपोर्टेड। ओके, तो लेटरली सपोर्टेड बीम है, मतलब दो केस हो सकते हैं, दैट मे बी इट इज अ लो शेयर केस और मे बी इट इज द हाई शेयर केस। Beam of effective span of 5 meter. Okay, so length of the beam is given to you, that is 5 meter. Okay, fine. For the following data, the grade is Fe410, so Fy, the yield strength is 250 Newton per mm square. Okay, factored maximum bending moment is 180 kilonewton meter and factored maximum shear force is 220 किलो न्यूटन। ओके, इन द लास्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें गिवन था, इससे लास्ट क्वेश्चन में, ये लास्ट लेक्चर में जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, उसमें जो हमें लोड गिवन था, डेड लोड अलग गिवन था, लाइव लोड अलग से गिवन था, वो भी हमें सर्विस लोड गिवन था, फिर हमने उसमें 1.5 लोड फैक्टर की मल्टीप्लाई करी टू गेट दी फैक्टर्ड लोड, राइट। और उसके बाद हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला लगाया, फिर हमने मैक्सिमम शेयर फोर्स का फॉर्मूला लगाया, देन we got these value. So in this question directly they have given this value and we are getting this value, means directly question में given है, तो maximum bending moment 180 and maximum shear force is 220. Okay, check for deflection is not required. Okay, if it is given this question like this, so you don't need to provide check to the examiner. So don't show this check if it is mentioned like this. If it is not mentioned like this, then you can show the deflection check. Okay, so section is given to you, section is ISLB 350. So if we have section, then we can cross check that the section is sufficient or not. Let us say as in the last question we have calculated the ZP required, so in this question we are doing the same thing. The ZP required is equal to moment upon Fy over 1.1. Bending moment हमको given है, one bending moment is 180 into 10 to the power 6 divided by 250 over 1.1. Okay, moment is 180 into 10 to the power 6 and divide Fy over 1.1. So ZP required कितना है, 792 into 10 to the power 3 mm cube. Okay, this is ZP required and हम फिर जो है स्टील टेबल में गए, स्टील टेबल में हमने सेक्शन चूज करा ISLB 350. Okay, and the given the section is also ISLB 350, so hence fine. तो ISLB 350 का जो ZPZ था, सेक्शन प्लास्टिक सेक्शन मॉडल्स था, वो 851 था और रिक्वायर्ड कितना आ रहा है 792, हेंस ओके। इट मींस क्वेश्चन में गिवन है
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी आप जेड पे रिक्वायर्ड ऐसे निकाल के एंड यू विल गेट दिस सेक्शन कि ये सेक्शन हमको रिक्वायर्ड है। ये हमको मिल गया। तो इसके और प्रॉपर्टीज भी हम नोट डाउन कर लेंगे और डायमेंशंस भी। तो जेड ई जेड नोट डाउन कर लिया, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। टोटल डेप्थ तो 350 हो ही गई। विड्थ ऑफ फ्लैंज इसका नोट डाउन कर लिया 165 mm। थिकनेस ऑफ फ्लैंज इसका नोट डाउन कर लिया 11.4 mm। थिकनेस ऑफ वेब 7.4 mm। R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 mm। ये सारी चीज़ें हमें स्टील टेबल से मिल गई, हमने नोट डाउन कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड दी डेप्थ ऑफ वेब, है ना। तो सिमिलरली सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, यहाँ पर भी इस तरह से ही करेंगे कि ये जो है आपका आई सेक्शन होता था रोल्ड, ये जो है आपका दिस मच इज थिकनेस ऑफ फ्लैंज TF, एंड उसके नीचे ये जो कर्वेचर पार्ट है इसको बोल दिया R1। नीचे साइड से भी ऐसे ही होगा। तो डेप्थ ऑफ द वेब इसको एक्सक्लूड करके जो बचता है, यानी कैपिटल D माइनस ट्वाइस ऑफ TF प्लस R1। ट्वाइस क्यों कर रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी है। So 350 minus twice of 11.4 into 60, ठीक है। So depth of web is 295.2 mm, ये आपका आ गया। पेज नंबर 18 पे आपको गिवन है कि सेक्शन प्लास्टिक आपको कैसे प्रूव करना है। मैंने बताया था प्लास्टिक सेक्शन ही हम डिज़ाइन कंसिडरेशन में लेते हैं। तो हमें शो करना होता है दैट एज पर द डायमेंशन ऑफ द सेक्शन आवर सेक्शन इज प्लास्टिक और नॉट। डायमेंशन ये थी विड्थ ऑफ फ्लैंज बाय 2 बाय TF, whatever be the this value coming 7.23, it should be less than 9.4 epsilon, and it is coming hence okay. D by TW means depth of web, which is 295 over TW 7.4, is coming 39.9, around 40, okay. This 40 is less than 84 epsilon, okay fine। epsilon मैंने बताया था क्या होता है आपका under root 250 over Fy, and Fy is 250, the 250 over 250 epsilon is what, so epsilon is 1, okay। So both criteria is fulfilled, so we can say this section is plastic. Now next step is to find that this case is a low shear case or it is high shear case. So to check this, to find this, we need to find first design shear force VD. So VD is equal to Fy over root 3 into 1.1 into area of web। और शेयर फोर्स कैलकुलेशन में मैंने बताया था हम टोटल डेप्थ लेते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि दिस होल डेप्थ इज टेकिंग पार्ट रजिस्ट्री, है ना, शेयर। सो कैपिटल D into TW। So design shear force after putting the value is coming 339.8, around 340 kilonewton or 340 into 10 to the power 3 न्यूटन, ओके। इसका क्या करना है, 60% निकालना होता है, ओके। रिमेंबर ऑलवेज 0.6 VD, तो 0.6 VD क्या, 203.9 किलो न्यूटन। So this 6 VD, 0.6 VD, if it is coming less than this, our design shear force, hence we can say this case is high shear case। So 0.6 VD कितना है, 203.9 किलोन्यूटन आया। गिवन shear force जो क्वेश्चन में था वो था आपका 220 किलोन्यूटन। You can check about given shear force was the 220 kilonewton and it is coming higher than the 0.6 of VD, then it is clearly a high shear case, it is clearly a high shear case। So design is governed by those moment, right? You remember that MDV, MFFD वो सब calculate करना पड़ेगा, okay। So MD इसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो MD भी निकाल लेते हैं, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, लास्ट क्लास में निकाला था। तो ZPZ Fy into beta B over gamma m naught, beta B 1, okay, Fy 250 and ZPZ हमको स्टील टेबल से मिल जाएगा। MD आ गया 193.43 किलोन्यूटन मीटर, ओके। मॉडिफाइड प्लास्टिक डिजाइन मोमेंट, MDV का नाम क्या है, मॉडिफाइड प्लास्टिक डिजाइन मोमेंट, ओके। तो MDV का फॉर्मूला पहले हमने मेंशन किया था, बताया था, इट इज MD माइनस बीटा ब्रैकेट MD माइनस MFT। MD निकाल लिया है, बीटा यहाँ पर डिफरेंट होता है, बीटा यहाँ पे होता है ट्वाइस VA अपॉन VD माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो निकालेंगे अभी। नेक्स्ट MD माइनस MFT आपको फाइंड करना है, फ्लेंज का मोमेंट। तो फ्लेंज पे कैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। तो MFD इज कैलकुलेटेड बाय व्हाट, बेस्ड ऑन ZFD सेक्शन मॉडुलस एक्सक्लूडिंग दी वेब एरिया। तो बताया था मैंने ZFD कैसे कैलकुलेट करना है, ZPZ माइनस
सेक्शन मॉडुलस ऑफ वेब। तो देखिए ये फिगर आपके सामने है, दिस इज योर आई सेक्शन, दिस इज टोटल डेप्थ 350। ओके, ZPZ टोटल सेक्शन मॉडुलस में आपको गिवन है ना, 851 में आपने कर लिया 0.11 × 10⁻³ ओके फाइन, माइनस AW के एरिया ऑफ वेब, मैंने बताया था पूरा एरिया हम लेते हैं, यानी ये पूरे स्ट्रिप। ओके, तो कितना एरिया हो गया, दिस टोटल D इंटू TW। ओके, दिस T इंटू 2W, तो यहाँ पे कुछ नहीं करा है, D/2 इंटू TW इंटू 2 करा है ना, तो वही की चीज़ हो गई। ओके, AW आ गया आपका D इंटू TW से। YW का मतलब हो गया कि जैसे ये आपका शेयर में पार्ट ले रहा है। ओके, टोटल डेप्थ इस स्ट्रिप की कितनी है, D, सेंटर यहाँ से पास हो रहा है न्यूट्रल एक्सिस, और Y बार यानी अपर बॉडी के CG से सेंटर से और न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस, तो YW इज व्हाट, D/2, तो ये हो गया, और इसका भी हाफ है D/4 यानी 350/4। ऐसे निकलता है आपका सेक्शन मॉडुलस। ओके, तो ZFD निकल जाएगा, टोटल ZP में से ये माइनस कर दिया, एक्सक्लूडिंग कर दिया हमने क्या, वेब का सेक्शन मॉडुलस, तो ये आ गया आपका सिर्फ फ्लेंज का। तो सिर्फ फ्लेंज का सेक्शन मॉडुलस आ गया, तो भाई मोमेंट भी आ जाएगा। तो मोमेंट यानी FMD इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस इनटू स्ट्रेस, इज सिंपल, F5 और 1.1। तो ये सॉल्व करने के बाद आपका MFD कितना आ गया, 141.93 किलो न्यूटन मीटर। MFD आ चुका है, MD पहले निकाल लिया है। बीटा, व्हाट इज द बीटा, बीटा मैंने बताया था ट्वाइस V/VD-1 का होल स्क्वायर। V हमारे पास है, VD हमारे पास है ना, बीटा हमने कैलकुलेट कर लिया 0.087। डोंट कंफ्यूज दिस बीटा विद द अनदर बीटा बी जो MD में हम लेते हैं, दैट बीटा बी इज बेस्ड अपॉन द सेक्शन, प्लास्टिक सेक्शन है तो बीटा बी 1 होता है, ये बीटा एक अनदर फैक्टर है, डोंट कंफ्यूज। ओके, MDB modified moment will be the MD minus beta, MD minus MFT, सारी वैल्यूज आपके पास हैं अब, so easily you will get the MDB value। so design plastic moment is 205, और इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि it is coming greater than actual moment। ओके, क्वेश्चन में जो मोमेंट है उससे ज्यादा आ रहा है, हेंस प्रूफ। ओके, है ना, 180 गिवन है क्वेश्चन में। ओके, चेक कर लेते हैं, ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। So in this question देखिए, factored maximum bending moment कितना है, 180 किलो न्यूटन मीटर। It is given as moment is 180 किलो न्यूटन मीटर। So the modified moment which is coming after solving is 205.06 किलो न्यूटन मीटर। Okay, so it is greater than, hence it is safe। Okay, now similarly the same check buckling and the crippling, deflection उन्होंने मना कर दिया, डिफ्लेक्शन चेक नहीं करना है। बकलिंग क्या करते थे हम कि वही बी निकालते थे, डिस्पर्स एरिया B+N होता था, है ना, 45 डिग्री पे, तो बेरिंग एरिया निकालते थे हम B इंटू TW, फिर आई निकालते थे, है ना, I/A बेरिंग एरिया होता था 100 इंटू TW, फिर I/A करके R मिनिमम निकलता था, फिर L इफेक्टिव लेंथ अपन R मिनिमम करके लैम्डा निकलता था, है ना, वो सब तो प्रोसीजर है, ठीक है, बट एक चेक भी है इसके लिए, एज पर द आईएस कोड। चेक ये है कि D/TW इफ इट इज लेस देन 67 एप्सिलॉन, D/TW मतलब डेप्थ ऑफ द वेब डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ वेब का रेशियो अगर 67 एप्सिलॉन से कम है, एप्सिलॉन तो जनरली 1 है 250 के लिए, तो 67 से कम है। ओके, चेक कर लो, दिस इज DW एंड दिस इज TW, इट इज कमिंग 40, है ना, इट इज लेस देन 67। अगर ये आ रहा है नॉर्मली कम, तो जनरली यू नो यू कैन से द बकलिंग में ये हमारा जो है वेब फेल नहीं होता है, यानी डेप्थ कम है, इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं कि बकल कट जाए, है ना, ये एस कोड ने क्राइटेरिया दिया है। बट फिर भी अगर आप शो करना चाहते हैं एग्जामिनर को, शो ऐसे कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर जैसे हमने किया था, डिस्पर्जन हो गया इसका, B/N हमने कर दिया, है ना, बियरिंग एरिया B/TW कर दिया। ओके, आई निकाल लिया B/TW का क्यूब बाय 12, दिस B इज द बियरिंग प्लेट का जो विड्थ होती है वो होती है ये, ठीक है, B इज द width of the bearing plate, and this B always the most of the time we consider this B, most of the time we consider this B as 100 mm. Okay, so area is 740 100 into 7.4. Okay, length of the web तो 0.7 times into D लेते हैं, आपको पता होगा, है ना, 0.7 times into D is the depth of web, तो ये आ गया effective length। you have effective length, you have I/A यानी R minimum under root, ये आ गया, तो L/R minimum आपके पास लैम्डा आ गया, तो लैम्डा आफ्टर सॉल्विंग इट इज कमिंग 96.74। अगेन विल डू द सेम थिंग,
We have this several lambda values here in table 9C IS code because buckling class is C. So we have Fi value here. We will get the FCD value. We will get the compressive strength value where the buckling stress value. This is 115. So what is the buckling strength? Buckling strength will be FCD. This is stress into the area of the web, and this is the area. Sorry, this is the stresses FCD. ये सॉल्व करके 227 आया. दिस थिंग यानी बकलिंग स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन दी shear force V. वो कितना था आपका 220 था, है ना. So it is greater than, hence it is safe in buckling. Fine. नेक्स्ट द सेम क्रिपलिंग चेक. क्रिपलिंग चेक जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, कुछ नहीं करना. बेरिंग प्लेट का ये देखो मैंने बताया था जो आपको, हम बेरिंग प्लेट यहाँ पर एज्यूम कर रहे थे थ्योरी में, है ना. तो डोंट बी कंफ्यूज कि सर ना आपने ऊपर माना था, ये मेरिकल में आप नीचे मान रहे हो. जब ऊपर मानोगे तो आप इस तरह से डबल डिस्पर्जन लोगे, है ना. तो जनरली जो देखो डबल डिस्पर्जन में ट्वाइस करोगे तो जो कैपिटल बी है ये बड़ा है, कैपिटल बी बड़ा होगा तो बी इंटू टी डब्ल्यू, एरिया बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगी. तो सेफ साइड करने के लिए हम वन साइड डिस्पर्जन मानते हैं, तो हम कोने में मान लेते हैं इस प्लेट को. ये प्लेट जो है कोने में है, यहाँ कोने में प्लेट होगी तो इसी साइड डिस्पर्जन होगा ना, वन साइड. ओके. तो क्रिपलिंग में जस्ट कहाँ पे डिस्पर्जन कहाँ पे होता है क्रिपलिंग, बेसिकली थिक जॉइंट पर जहाँ पर वेब और फ्लैंज होते हैं, ठीक है. मतलब ये आई सेक्शन आपका इस तरह से है, तो यहाँ पर नॉर्मली क्रिपलिंग आती है इस तरह से. डिस्पर्जन विल बी दी 2.5 टाइम्स ऑफ टी एफ इंटू आर वन. यहाँ से एन निकल गया, इसमें बीम ऐड कर दिया, कैपिटल बी आ गया, कैपिटल विड्थ निकल गई डिस्पर्जन की, इंटू टी डब्ल्यू कर दिया थिकनेस ऑफ वेब, एरिया निकल गया, एरिया इंटू स्ट्रेस कर दिया आपका एफ डब्ल्यू आ गया. एफ डब्ल्यू क्या होता है, क्रिपलिंग स्ट्रेंथ. बकलिंग स्ट्रेंथ एफ डब्ल्यू बी, एफ डब्ल्यू क्रिपलिंग स्ट्रेंथ. और ये कैलकुलेट करने के बाद ये आपका ग्रेटर होना चाहिए किससे, गिवन शेयर फोर्स से, जो कि 220 है. हेंस इट इज ग्रेटर देन द शेयर फोर्स, हेंस इट इज सेफर. ओके. तो ये डिजाइन भी फिनिश हो गया. नेक्स्ट इज द डिजाइन ऑफ लेटरली अनसपोर्टेड बीम. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वी कैन स्किप दिस, एंड ये टाइम भी कम है. तो लो शेयर केस हमने देख लिया, हाई शेयर केस हमने देख लिया. तो बाय दिस लेक्चर वी कैन से द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फोर्थ यूनिट also we have covered. Okay, so after this we will try to start the fifth one, chapter fifth, that is design of plate girder. Topic of the chapter is design of plate girder, that we will try to start. Okay, but नहीं start कर पाते हैं video lectures में, then I'll provide the notes. Okay, so thank you.